dear students, hope you all are good and fine. So here I am going to explain you a new chapter of English grammar, that is chapter number 9, and the name of chapter is More on Pronouns. Now you will say in the previous chapter we have read about pronouns and again we are going to read about pronouns, so don't worry about that. In this chapter we are going to know about the usage of pronoun. So we will know more about it. So as we all know that pronouns are the words which are used in place of a noun. He, she, it, they are pronouns. So let's read this conversation, then we will come to know about the pronouns more. More on pronouns. Hey guys, who is this? Dia. Why does she look so worried? Let's find out. Hey Dia, what happened? Did somebody scold you? No, but my teacher told me to rewrite this passage that I had written. I can't see what is wrong in it. Please show it to me. I might be able to help. Dia, what you have written is correct, but you should have made use of pronouns at places. Pronouns? Come, I will explain. Look at how many times you have repeated your name. I'll show you how we can avoid that. Now, the first Dia here looks fine, but this Dia could have been replaced with I. Same for these. Okay, then I's doll is pink in color. No, dear. Here we are talking about your doll. So, it would be my. Oh, then the next two would be I, right? Correct. But has becomes have and plays become play. Why so? These are forms of verbs. I'll explain them some other time. Okay. And the two after that also. Here, loves becomes love and has becomes have. Great. Let me finish. My friends play with I. No, this is me. Okay, so my friends play with me in school. I love going to school. Wow, Dia. Now, read your passage. How does it sound? Sounds great. There are other pronouns like he, she, it, us, they, and them. When we talk of a boy, we use he. A girl is she. A thing is it. Many people are they. And when you are a part of the group, it is us. Something about those people is them. Wow! Thank you, Bhaiya, for all these new terms. So, these were the pronouns. A quick recap. See you around with something new next time. Yes, student, here is a table for you. In this table, I have written first person, second person, and third person pronouns. For the first person singular, जब singular की बात करते हैं तो यहाँ पे pronoun use होता है I, me, my, mine. Means I, me, mine. I जैसे I am Shashi. This is my marker. She gave me an apple. So this is the uses of first person as singular. And plural of first person we, us, our, ours. अभी मैंने यूज किया फर्स्ट पर्सन में I. तो I में कौन था? सिर्फ मैं थी. अब मैं बात कर रही हूँ we की. जब प्लूरल होता है तो we में क्या होगा? मेरे साथ और भी लोग होंगे या फिर मैं किसी ग्रुप का पार्ट होंगी तो वो क्या हो जाएगा? We are friends, we are classmates, we are teachers, we are staff members, and us. Us is here used as object. As an object हम use करेंगे. And then ours. Clear? This is our class. This is our classroom. This is our books. These are our teachers. Clear? They gave us something to eat. तो वहां हम यूज करेंगे us. Next is second person. Second person में क्या होगा? जो सिंगुलर और प्लूरल होगा only you होगा. Clear?
जैसे कि यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल फर्स्ट पर्सन में डिफरेंट डिफरेंट थे, बट इन सेकेंड पर्सन इट विल रिमेन सेम, यू एंड फॉर पॉजेसिव इट विल बी यूज्ड एज योर योर्स। जैसे कि अब सेकेंड पर्सन क्या होगा, जिससे मैं बात कर रही हूँ, मीन्स द पर्सन whom I am spoken to, जिससे मैं बात कर रही हूँ, लाइक मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आप कौन हुए, यू आर सेकेंड पर्सन, यू। नेक्स्ट थर्ड इज सिंगुलर। सिंगुलर के लिए यूज करेंगे ही, एज यू ऑल नो दैट वी यूज फॉर मेल, हम बॉयज के लिए यूज करते हैं ही। तो जब ऑब्जेक्ट की बात होगी वी विल यूज हिम। ही इज अ गुड बॉय, I gave him a pen. His notebooks are very neat and clean. Next, she is used for girl. And when we talk about object, her, and for possessive, her and hers. And it is used for animals or non-living things. या तो कोई थिंग के लिए यूज होगा, as I have marker in my hand. तो फॉर दिस आई एम यूजिंग इट, तो इसके लिए मैं इट यूज करूंगी, और कोई भी एनिमल होगा तो उसके लिए भी हम इट यूज करेंगे। सो जब इसका पोजेशन की बात आएगी, पोजेसिव की बात आएगी, वी विल यूज इट्स। नेक्स्ट नाउ प्लूरल ऑफ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होगा, दे, देयर। अब देयर में क्या होगा कि जिसका पार्ट हम नहीं है, जहां पे हम नहीं है, हम किसी और की बात कर रहे हैं, वो वन से ज्यादा पर्सन्स है, तो वहां हम यूज करेंगे दे। क्लियर? अब आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन, यू जस्ट लुक एट मी एंड think about yourself also and think about your friends also. Clear? The pronouns I am using for myself, I, me, us, we, तो ये सब क्या हुए, फर्स्ट पर्सन। आपके लिए जो यूज हो रहे हैं यू, योर, वो क्या हुए, सेकेंड पर्सन। और जहां पे हम इंक्लूड नहीं हैं, लाइक आपके जो फ्रेंड्स हैं वो हमारे साथ अगर नहीं है, हम उनमें इंक्लूड नहीं है, वो कहीं और बैठे हैं, कहीं और मीटिंग कर रहे हैं, तो वो क्या हो गए, थर्ड पर्सन। तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, दे आर जस्ट एंजॉयिंग अ पार्टी। रीड दिस कन्वर्सेशन, पे अटेंशन टू द प्रोनाउंस इन कलर। इस कन्वर्सेशन को आपको रीड करना है, और इस कन्वर्सेशन में प्रोनाउंस हैं जो वो कलर्ड किए हुए हैं। ईशान कह रहा है, व्हाट आर यू डूइंग मनीष तुम क्या कर रहे हो, कम विद अस, हमारे साथ आओ। ज्योति एंड आई आर गोइंग टू फ्लाई काइट्स इन द पार्क, मैं और ज्योति पार्क में काइट्स फ्लाई करने जा रहे हैं। जस्ट सी हियर, यू इज़ हाईलाइटेड, इट्स कलर्ड, यू यहाँ पर प्रोनाउन है। देन अगेन अस इज़ ऑल्सो प्रोनाउन, इट्स कलर्ड। एंड इन द नेक्स्ट सेंटेंस यू विल सी ज्योति एंड आई इज़ ऑल्सो प्रोनाउन। सो इन द पिक्चर जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। जो एक चाइल्ड बैठा है वो कौन है, वो है मनीष, और जो बॉय उससे बात कर रहा है वो कौन है, ईशान है, और गर्ल खड़ी है उसके साथ एक। अब नेक्स्ट पिक्चर में चेक करते हैं हम, जो मनीष है वो आंसर कर रहा है ईशान को और उस गर्ल को। मनीष कह रहा है, आई डू नॉट नो हाउ टू फ्लाई अ काइट, मैं नहीं जानता कि काइट को कैसे फ्लाई करना है। हेयर आई इज़ प्रोनाउन, इट्स नॉट कलर्ड हेयर बट आई इज़ प्रोनाउन। विल यू टीच मी, क्या तुम मुझे टीच करोगे, खुद के लिए वो बोल रहा है मनीष, क्या तुम मुझे टीच करोगे। यहाँ जो है प्रोनाउन वो ऑब्जेक्ट यूज हुआ है मी, तो मी इज़ प्रोनाउन हेयर। नेक्स्ट ईशान, ऑफ कोर्स। अब इस पिक्चर में फिर से देखेंगे आप, ईशान बात कर रहा है, ईशान कह रहा है ऑफ कोर्स। वेयर इज़ मदिया कहाँ है, वी विल आस्क हर टू, हम उसे भी पूछेंगे। मदिया एक गर्ल है तो उसके लिए यहाँ पर हर प्रोनाउन यूज़ किया गया है। इन द नेक्स्ट पिक्चर just see, one boy and one girl is standing there, and the girl is Madiya and the boy is her brother Junaid. Now मनीष कह रहा है she is with her brother Junaid, वो अपने ब्रदर जुनैद के साथ है। let us ask him as well, आओ हम उसे भी पूछते हैं। him यहाँ पर जुनैद के लिए यूज़ किया गया है बिकॉज वो बॉय है, और अस यहाँ पर यूज़ हुआ है मनीष बात कर रहा है ना, तो मनीष के साथ अब 2 चिल्ड्रन और हैं, वन इज़ ईशान एंड 1 गर्ल इज़ देयर ज्योति। तो ये 3 लोग हैं, इन 3 का ग्रुप है। तो मनीष बात कर रहा है, तो मनीष उन तीनों के लिए अस यूज़ कर रहा है। लेट अस गो एंड कॉल देम नाउ, आओ चलें और उन्हें बुलाएं।
सो यहाँ पे अब अस और देम का डिफरेंस देखेंगे। सो यहाँ पे जो आपकी थर्ड पिक्चर है उसमें चेक करें आप, जो मनीष है वो बात कर रहा है ईशान से और ज्योति से, ठीक है। तो मनीष यहाँ पे बोल रहा है अस, जब वो मनीष उनके साथ उनके ग्रुप का पार्ट है तो वो अस यूज़ हो रहा है। बट यहाँ पर मदिया और जुनैद हैं वो दोनों अलग हैं, उनके साथ कोई भी नहीं है, मीन्स वो अलग हैं, मनीष उनके साथ इंक्लूड नहीं है, क्योंकि मनीष बात कर रहा है, मनीष उनके साथ इंक्लूड नहीं है, वो कहीं दूर खड़े हैं, तो उनके लिए दैम यूज़ हुआ है। नाउ ईशान, दिस इज़ आवर काइट, ये हमारी काइट है। मनीष, इट इज़ वेरी प्रिटी, ये बहुत सुंदर है। नाउ इट जो है वो प्रोनाउन है, इट यूज़ किया गया है थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि इट थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है या फिर एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है। वी हैव लर्न दैट अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्रोनाउन होता है वो नाउन के प्लेस पर यूज़ किया जाता है। ही, शी, इट, दे जो हैं वो प्रोनाउन हैं। द वर्ड्स यू, अस, मी, हिम, हर, देम, ये भी क्या है, प्रोनाउन है। ए एक्सरसाइज, आई हैव टू गो टू दिया's हाउस, मुझे दिया के घर जाना है। विल यू कम विथ मी और आई? यस, वी विल यूज़ योर मी, क्या तुम मेरे साथ आओगे? मी, विल यू कम विद मी? मिस जोशी टोल्ड डैश, आई और अस आर ऑप्शंस, टू कम टू स्कूल अर्ली। मिस जोशी टोल्ड आई और अस, व्हाट विल वी यूज़ हियर? यस, अस, हमें बोला है मिस जोशी ने स्कूल जल्दी आने के लिए। नेक्स्ट नंबर 3, माई ब्रदर एंड सिस्टर आर वर्किंग इन द गार्डन, मेरे ब्रदर और सिस्टर गार्डन में वर्क कर रहे हैं। माई फादर टोल्ड वी और दैम टू वाटर द प्लांट्स, मेरे फादर ने प्लांट्स को वाटर देने के लिए कहा है। किसे कहा है, वी या दैम? वी तो अगर हम उसका पार्ट होते या जो भी ये बोल रहा है उसका पार्ट होता तो वो वी यूज़ होता, बट वो वहाँ नहीं है, तो ब्रदर और सिस्टर सिर्फ वर्क कर रहे हैं तो उनके लिए क्या यूज़ होगा, दैम। मिसेस शंकर मेट माई मदर येस्टरडे, मिसेस शंकर जो है मेरी मदर को कल मिली, एंड टोल्ड दैट मंडे इज़ अ हॉलीडे, और बताया कि मंडे जो है वो हॉलीडे है। हेयर वी हैव टू ऑप्शंस, हर एंड दैम, तो क्या यूज़ करेंगे मदर के लिए, मदर फीमेल है तो फीमेल के लिए हर यूज़ करेंगे, और दैम जो होता है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है, और मदर सिर्फ वन पर्सन है तो उनके लिए हर यूज़ होगा। नेक्स्ट नंबर 5, आर हिम और यू कमिंग टू गुरदीप्स हाउस टुमारो? हिम और यू, व्हाट विल वी यूज़? यू, क्या तुम कल गुरदीप के घर आ रहे हो? 6 इज, वी आस्क्ड अस और देम टू कम टू पार्क बाय 4 PM, हमने उन्हें पार्क में आने के लिए कहा है 4 o'clock, 4 PM। सो क्या यूज़ करेंगे यहाँ हम, अस या देम? अस यूज़ होता है जब हम भी उसका पार्ट होते हैं, जब हम उनका पार्ट नहीं है तो क्या यूज़ होगा, देम। नेक्स्ट नाउ बी एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम करेक्टली। यू कैन रिपीट द वर्ड्स। फर्स्ट, देयर आर 3 न्यू बॉयज़ इन द स्विमिंग क्लास, स्विमिंग क्लास में 3 न्यू बॉयज़ हैं। डू यू नो डैश, अब क्या ऑप्शन फिल करेंगे हम, प्लूरल है तो प्लूरल के लिए अब हम उन बॉयज़ का पार्ट नहीं है तो क्या यूज़ होगा, ऑफ कोर्स देम, वी विल यूज़ ए देम। डू यू नो देम, क्या तुम उन्हें जानते हो? नंबर 2, दिस इज़ आर न्यू स्कूल बिल्डिंग, ये हमारी स्कूल की न्यू बिल्डिंग है, डैश इज़ वेरी बिग। सो अब यहाँ पर क्या यूज़ होगा, बिल्डिंग है स्कूल की तो क्या यूज़ करेंगे, इट, यस। सो नंबर 3, वर यू इन द मार्केट येस्टरडे, क्या तुम कल मार्केट में थे? वी सो योर सिस्टर रूबी, हमने कल तुम्हारी सिस्टर को देखा वहाँ मार्केट में। बट वी डिड नॉट सी डैश, लेकिन हमने किसे नहीं देखा, किसकी बात हो रही है, तुमसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम कल मार्केट में थे और तुम्हारी सिस्टर को देखा, लेकिन तुम्हें नहीं देखा, तो फिर क्या यूज़ करेंगे, यू, बट वी डिड नॉट सी यू। नंबर 4, श्रुति's अंकल केम डाउन फ्रॉम मुंबई येस्टरडे, श्रुति के जो अंकल हैं वो कल मुंबई से वापस आए हैं। ही टुक डैश टू सिनेमा, वो सिनेमा ले गए, किसको ले गए, श्रुति को ले गए। श्रुति के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, हर, उसे ले गए। फिर अगर श्रुति और मुझे ले गए, हम बात कर रहे हो, श्रुति जैसे मेरी फ्रेंड है तो मुझे भी ले गए, तो क्या यूज़ करेंगे, अस। अगर सिर्फ मुझे ले गए तो क्या यूज़ करेंगे, मी। तो हेयर 3 ऑप्शंस हम फिल कर सकते हैं इसमें,
कोई भी 3, अगर हम 3 का आंसर लिखते हैं तो 3 में से कोई भी करेक्ट है, कोई भी लिख सकते हैं 3 में से, अस, मी, हर। ओके, अस यूज़ होगा इन केस अगर वो श्रुति और मुझे दोनों को ले गए, अगर सिर्फ मुझे ले गए तो मी, अगर सिर्फ श्रुति को ले गए तो हर। रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस यू विल डू इट योरसेल्फ। शी ऑल्सो आस्क्ड देम टू हेल्प साहिल। सो यहाँ पे क्या हम देम यूज़ करेंगे? फ्रेंड तो मैं हूँ ना साहिल का, तो मेरे लिए मैं तो 1 पर्सन हूँ, देम तो 1 से ज़्यादा पर्सन के लिए यूज़ होता है। सो हियर वी विल यूज़ मी टू हेल्प साहिल। वी टोल्ड हिम दैट, हमने उन्हें बताया, उसे बताया, किसे बताया? मतलब उसके पेरेंट्स को बताया, तो देम यूज़ करेंगे, देम दैट। हम यहाँ पर हर भी यूज़ कर सकते हैं देम के साथ, बिकॉज साहिल की मम्मा बात कर रही है, तो देम और हर दोनों राइट हैं इस कंडीशन में। देम दैट दे विल वर्क हार्ड एंड डू वेल। दे तो यूज़ नहीं करेंगे ना, अब यहाँ पे मैं और साहिल हैं, हम दोनों की बात हो रही है, तो हम क्या हो गए? वी विल वर्क हार्ड टू डू वेल। So this was all about this exercise. Do practice of these pronouns. Now opposites. Find the opposites of these words in the word grid. Write them in the blanks. आपने already opposite words किए हैं in your course book also. So opposite is a, you can say कि its meaning is different. If a word is given, तो उसका जो another वर्ड हम राइट करेंगे उसका मीनिंग क्या होगा? उसका अपोजिट होगा, डिफरेंट होगा बिल्कुल। एज हमें इसमें क्या करना है, हमें ग्रिड दी हुई है, उस ग्रिड में हमें क्या करना है, फाइंड आउट करने हैं अपोजिट इन वर्ड्स के। फर्स्ट इज़ डार्क एंड द अपोजिट ऑफ डार्क विल बी लाइट। नंबर 2 फास्ट, इट्स अपोजिट विल बी स्लो। अवेक यानी कि जागना, एंड इट्स अपोजिट विल बी अस्लीप। नेक्स्ट 4th नोइजी, its opposite will be silent. Hot, cold, big, small. And I am giving you opposites in PDF also. You will write the opposite words in your English grammar notebook. Thank you.